آپ جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے اگر فیس بک پہ میری پوسٹ دیکھی ہے، واٹس ایپ پہ جتنے لوگ ہیں اور میسنجر میں جتنے لوگ ہیں، سب کو میں نے آج کے کلام کے بارے میں دعوت دی ہے، اور خاص ہمارا موضوع ہے کرونا وائرس اور اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے آج کی شام مقرر کی ہے کہ ہم سب آسمان کے خدا کی طرف دستے دعا بلند کریں اور آپ ہمارے ساتھ مل کر اپنی دعائیں بھیج سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ریٹن پریئر بھیجیں، میسج کو لائک کریں، اور پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کرونا وائرس اور اس کا بچاؤ، اور دوسرا خیال یا دوسرا پوائنٹ میں نے یہ شیئر کیا ہے کہ کیا کرونا وائرس کا تعلق ہیکل کی تعمیر کے ساتھ کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ دو اہم مضمون ہیں۔ اس سے پیش تر کہ میں خداوند کا زندہ پاک کلام شیئر کروں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ کلام کو سیکھ سکیں، اور اگر آپ کو کلام پسند آئے تو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو پہلا پوائنٹ ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں کرونا وائرس، کیا یہ خدا کا غضب الہی تو نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں محبت کا خدا دکھوں کو کیوں آنے دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جانن فانن لوگ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں، محبت کا خدا سونامی کو کیوں آنے دیتا ہے، ڈیزاسٹرز کو کیوں آنے دیتا ہے۔ تو لہذا ہم یہ آج مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھیں گے کہ محبت کا خدا پلیگز کو کیوں آنے دیتا ہے۔ پیسٹیلنس انگلش میں ہم کہتے ہیں وبا کو، مری کو کیوں آنے دیتا ہے۔ تو لہذا آپ ضرور اپنی بائبل کاپی پینسل لے کے بیٹھیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں۔ واقعہ ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا خدا دکھوں کو کیوں آنے دیتا ہے، تو یہ بات بہت حد تک درست ہے، وہ نہیں چاہتا، لیکن انسان خود دکھوں کو دعوت دیتا ہے۔ جب ہم اس زندہ کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتے، تو پھر خداوند خدا مری کو، وبا کو آنے دیتا ہے۔ بائبل بھری پڑی ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تھے، زندہ خدا کو ترک کر دیتے تھے، تو خدا ان پر وبا، مری اور غیر قوموں کو چڑھا کر لے آتا تھا۔ ڈو یو ایگری وتھ می؟
اور جہاں ضرورت ہے آپ ضرور اپنے کمنٹس دیں اور ساتھ ساتھ جو ہے فیڈ بیک دیں. ہاللیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی. تو ہم مختلف حوالہ جات سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے پیدائش کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں اس کا 6 باب، پیدائش 6 باب، اس کا 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں. جب خدا نے آدم کو بنایا تو بنانے کے بعد پیدائش 6 باب اس کی 5ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں. جینسس چیپٹر 6 ورس نمبر 5. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہوتے ہیں. پیدائش 6 باب 11 آیت. پر زمین خدا کے آگے ناراض تو ہو گئی تھی، وہ ظلم سے بھری تھی. اور خداوند نے نوح سے کہا تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے. جب کبھی بھی گناہ زمین پر بڑھ گیا، جب کبھی بدی زمین پر بڑھ گئی تو گناہ کا شور آسمان تک پہنچا تو خدا نے اس کی عدالت کی. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم کے دور میں بدی بدکاری بہت زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے نوح کو چنا اور اس نے کشتی بنائی اور اس میں صرف 8 جانیں جو ہیں وہ بچ گئیں اور ہر جانوروں کا ایک جوڑا بچ گیا. اور اس کو آپ خود پڑھیں، خود سٹڈی کریں، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں پورے حوالہ جات پڑھوں. پیدائش 6 باب اور 7 باب آپ نے پورا پڑھنا ہے. طوفان کے بارے میں پورا لکھا ہے. 7 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا. اس نے کشتی کو اوپر اٹھایا تو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں چھپ گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے. سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے، چوپائے، جنگلی جانور، زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا نے ان کے گناہ کی عدالت کی اور سب کو جو ہے پانی کی وبا بھیج کر سب کو جو ہے مار دیا، ختم کر دیا. تو اب ہم کہیں گے کہ محبت کا خدا دکھوں کو کیوں آنے دیتا ہے؟ خدا نے ان کو موقع دیا، درگزر کیا. خدا مہلت دیتا کہ ہم باز آ جائیں، اور خدا پہلے اپنے نبیوں کے ذریعے کلام کرتا ہے. عموس 3 باب 3 سے 7 آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں. عموس 3 باب 3 سے 7 آیت تک کہ خدا کوئی کام ایسا نہیں کرتا جب تک کہ اپنے خدمت گزار نبیوں پر زہر نہ کر لے. تو میں پہلے یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ why did God send plagues؟ وہ وبا اور مری کو کیوں بھیجتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ابھی میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اس کلام کو سیکھ رہا ہوں. اب پیدائش 18 باب اس کی 20 آیت میں ہم آ جائیں. جینسس
चैप्टर 18 वर्स 20। फिर खुदावन ने फरमाया, क्योंकि सदूम और मूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। तो आप देखते हैं कि सदूम और मूरा का शोर बढ़ गया, बदी बहुत बढ़ गई, गुनाह बहुत बढ़ गया। खुदा ने पहले उनको आगाह किया लूत के जरिए, लेकिन उन्होंने अपनी बदी से वो बाज ना आए। एक्चुअली उनकी बदी और गुनाह क्या था? यानी सदूम और मूरा के लोग जो है होमोसेक्सुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए थे, जिसका जिक्र आप लोगों को रूमियो पहला बाब उसकी 20, 21 और 22 आयत में भी आपको मिलेगा। तो जब होमोसेक्सुअलिटी बहुत बढ़ गई, उनके दिल में खौफे खुदा जाता रहा, खुदा ने उनको आगाह किया, उन्होंने तौबा ना की, तो तौबा ना करने के बाद खुदा ने गंधक का तूफान उन पर भेजा, आग की वबा और मरी उन पर भेजी, सबको तबाह बर्बाद कर दिया। सिवाय चंद जानों के आप सब जानते इसके बारे में कि उनका गुनाह क्या था, किस वजह से खुदा ने उनको तबाह बर्बाद किया। पहले मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि खुदा मोहब्बत का खुदा दुखों को, मुसीबतों को, वबा को, मरी को क्यों आने देता है। तो मैंने 2 वालाजात आपके साथ शेयर किए। फिर कलाम मुकद्दस का मशहूर जिक्र खरूज 7 बाब से लेके 11 बाब तक, जब खुदा मूसा को मिस्र में भेजता है। जब पहली बार मूसा का फिरौन बादशाह से टाकरा होता है तो कहता है, मुझे खुदा ने भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें। और उसने कहा, मैं तेरे खुदा को नहीं जानता, मैं किसी खुदा को नहीं जानता, मैं तो खुद खुदा हूँ। तो लिहाजा आप जानते हैं कि 10 वबाएं उन पर भेजी, जो कि झुकना नहीं चाहता था। खुदा ने उनको मौका दिया, मिस्र को तबाही बर्बादी से बचने के लिए मौका दिया, फिरौन को मौका दिया, लेकिन हर बार उसका दिल सख्त हो जाता था। और मेंढकों की वबा और जो है जुएं, और हम देखते हैं पानी खून हो गया, पानी पीने के लिए नहीं है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं और तरह तरह की वबाएं, जब फोड़े, फिंसियां, ये सारी की सारी वबाएं उन पर खुदा ने भेजी। और आखिर में जो वबा भेजी 12वें बाब में, तो खुदा ने कहा कि इस बार वो फिरौन तुमको जाने देगा। और उनके तमाम प्लॉटों को खुदा ने एक चक्की पीसने वाली औरत से लेके बादशाह के बेटे तक तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो लिहाजा ये वबाएं, ये मरी और ये सारे जो दुख मुसीबत हैं, ये अदालत को ज़हर का 28 बाब और 58 से 61 आयत तक खुदामंद खुदा कौम बनी इस्राएल से कहता है कि आज के दिन जो मैं अहकाम तुमको देता हूं, अगर तुम उन पर अमल करो तो कोई वबा, कोई मरी तुम पर नहीं आएगी। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं ऐसी वबाएं तुम पर लाऊंगा जो मिस्र में भी नहीं आई। तो खुदावंद खुदा ने ये वबाएं, बीमारियां भेजी और उनको आगाह किया और उनको बताया। इस बात के हवाले से हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को सीख रहे हैं। और अभी तक हम ये सीख रहे हैं कि ये बीमारियां, ये मुसीबतें,
और वबाएं क्यों आई। ये तरह तरह के जो आए रोज वायरस पैदा होते रहते हैं, और अगर एक वायरस का वैक्सीन निकला था कोई नया वायरस आ जाता है, इसलिए कि दुनिया का शोर जो है आसमान तक पहुंच गया है। और ये वबाएं, ये मरी जो है खुदा की तरफ से दुनिया के लिए एक वार्निंग है। मैं जल्द आने वाला हूं, अपने गुनाहों से तौबा करो। आर यू एग्री विद मी? अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो लिखें यस। दूसरा सैमुअल 24 बाब उसकी 15 आयत। कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे 2 सैमुअल चैप्टर 24 वर्स नंबर 15। अभी तक हम वबाओं के बारे में सीख रहे हैं। सो खुदाम ने इस्राएल पर वबा भेजी जो उस सुबह से लेके वक्त मुआयना तक रही, और दान से बीर सबा तक लोगों से 70,000 आदमी मार दिए। ये खुदा के अपने लोग हैं, क्योंकि खुदा ने उनके साथ अहद किया था कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो कोई वबा तुम पर नहीं आएगी। अगर अमल नहीं करोगे तो ये बीमारियां तुम पर आएंगी। अभी हम हल की तरफ नहीं आ रहे। अभी एक और जबरदस्त स्कीम की हवाला आप लोग नोट करें मेरे साथ। यसाया 24 बाब और उसकी 5वीं आयत को हम देखते हैं। बड़ा खूबसूरत हवाला है, तवज्जो फरमाएं। मैं आप सब बहन भाइयों को वेलकम करता हूं जो इस वक्त अपना कीमती वक्त निकाल कर खुदा के जिंदा पाक कलाम को कोरोना वायरस के बारे में और उसके हल के बारे में, उसके रूहानी ट्रीटमेंट के हवाले से सीखने को आप आए हैं। अज़ाया 24 वर्स नंबर 5। तवज्जो फरमाएं। जमीन अपने बशिंदों से नजिस हुई। क्या लिखा जी? जमीन अपने बशिंदों से नजिस हुई। जब जमीन पर शोर बढ़ जाता है, बदी बदकारी गुनाह का जोर बढ़ जाता है, तो खुदा वबाओं को भेजता है, खुदा बीमारियों को भेजता है जिनका कोई इलाज नहीं है, ताकि लोग खुदा की तरफ बाउ टर्न हो, तौबा करें, अपने गुनाह का इकरार करें। ये कोरोना वायरस जो है, इससे घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आगे चल के इसको और मजीद जब इसके हम ट्रीटमेंट की, रूहानी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तो मैं शेयर करूंगा। लिखा है कि जमीन अपने बशिंदों से नजिस हुई क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, यानी शरीयत की नाफरमानी की, आइन से मनहरफ हुए और अहदे अब्दी को तोड़ा। इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया। आज आप देख रहे हैं कि लाखों लोगों ने कोरोना वायरस को निगल लिया है और पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बन गया है, और हुकूमतें परेशान हैं, उनके पास इसका कोई हल नहीं है। और इसका हल एक ही है जो आज हम कलामे मुकद्दस में से सीखने को जा रहे हैं। एक और हवाला मेरे साथ आप देखें, मीका 7 बाब, मीका 7 बाब उसकी 13वीं आयत। ये तकरीबन मैंने आप लोगों के साथ जो 6-7 हवाला जात शेयर किए पूरी बाइबल में से, कि खुदा मरी, वबा, तूफान, डिजास्टर्स, दुख, मुसीबत, परेशानियां क्यों भेजता है।
خدا اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی کیا ہو, توبہ تک نوبت پہنچے. تو اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ خداوند خدا ایسا کیوں ہونے دیتا ہے, ایسی تکلیف بیماریاں کیوں انسان پر بھیجتا ہے. تو ایک حوالہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پہلا پطرس دوسرا پطرس 3 باب. دوسرا پطرس 3 باب 7ویں آیت. مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں, اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے. ابھی تک موقع ہے, خدا نے ہمیں موقع دیا ہے. ان ورسز کو آپ دوبارہ آرام سے بیٹھ کے ضرور سٹڈی کریں اور پڑھیں اور سیکھیں. اگر آپ کا کوئی سوال رہ جائے, نہ سمجھ آئے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اب 3 باب, دوسرا پطرس 3 باب اس کی 9 آیت ہے. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے, اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو یہ بات ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اور ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے. لوگ اتنے پینک ہے, لوگ گھروں کے اندر بند ہو کر محصور ہو کر رہ گئے ہیں. میں آج آپ کے لیے کلام مقدس کو لے کے آیا ہوں کہ آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس طرف ابھی آ رہے ہیں. اور ایک حوالہ میں نے بتایا تھا, شاید میں نے پڑھا نہیں, میکا 7 باب اس کی 13ویں آیت. اور زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے ویران ہوگی. زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے کیا ہوگی؟ ویران ہوگی. آپ اس وقت جتنا میں نے کلام شیئر کیا ہے, آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی حالت کیا ہے. بڑوں کے لیے کوئی قانون اور ہے, چھوٹے لوگوں کے لیے قانون اور ہے. بڑے لوگوں کو جیل جو ہے گھر جیسی ملتی ہے, چھوٹے لوگوں کو دکھ مصیبت, چھوٹے چھوٹے کمروں میں کتنے جو ہے ان کو پرزنرز کو بند کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کرپشن زوروں پر ہے, اور زنا کری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ. یعنی کچھ تو ایسا ذکر بھی سنا کہ پیدائشی بچیوں کے ساتھ بھی برا فیل کیا گیا. 3 سال سے لے کے 5 سال 7 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کرپشن زوروں پر ہے, بدی بدکاری زوروں پر ہے, ہومو سیکچویلٹی زوروں پر ہے, اور اس کے ساتھ آدمی کے ساتھ, عورت کے ساتھ یہ زنا اور بدی بدکاری خدا کے حکموں کو چھوڑ کر خدا نے ان کو ان کی شہوت میں چھوڑ دیا ہے. تو جب ایسا حال ہوگا تو خدا جو ہے بہت جلد اس دنیا کا, ابھی خدا عدالت کے پروسیس میں سے گزرا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں, جس بر اعظم میں, جس کنٹری میں, جس ملک میں, جس شہر میں ہم بستے ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زندہ خدا کے سامنے
आसमान के खुदा के सामने दस्ते दुआ बुलंद करें। वो कुदरत रखता है, उसके सामने कोरोना वायरस हो या कोई और वायरस हो, उसके लहू के सामने कोई ताकत ठहर नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। अगर आप घबराए हुए हैं तो आप दिलेरी से उस पैनिक से बाहर आ जाएं। और अब हम उस हल की तरफ जा रहे हैं कि खुदावंद देर नहीं करता। आज अभी भी खुदा इस कोरोना वायरस की वजह से तमाम दुनिया को मौका दे रहा है कि वो तौबा करे, अपने गुनाहों से इकरार करे, बाज आए, ताकि खुदा कोरोना वायरस से को खत्म करे और शफा दे। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं कोई नबूवत नहीं कर रहा, ये इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेगा। इसके पीछे खुदा का एक इल्हामी एजेंडा कार फरमा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि खत्म हो जाएगा, अभी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ेगा। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप जो डॉक्टर तदाबीर बताते हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो मैं आपको तदाबीर बताने लगा हूं उन तदाबीर से आपको मास्क नहीं बचा सकता। मास्क लगाने के बावजूद भी आपको मौत आ सकती है। आप सैनिटाइजर से हाथ धोने से भी मर सकते हैं। आप कोई और भी जो बताई जाती हैं तदाबीर हिफाजती, वो आपके काम नहीं आएंगी, क्योंकि गुनाह बढ़ गया है, क्योंकि बदी बढ़ गई है। इसलिए ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी। ये आप नोट कर ले, मेरा मैसेज है। ये कोई चीजें जो हिफाजती तदाबीरें हैं ये काम नहीं आएंगी। ये कोई चीज हमें बचा नहीं सकती। जितने भी डॉक्टर अपने प्रिकॉशन भेज रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये एक नुक्ता बता रहा हूं कि ये हमें बचा नहीं सकते। मास्क लगाने के बावजूद भी मौत आएगी, हाथ धोने के बावजूद भी मौत आएगी, हम पूरे कपड़े पहन लें हिफाजती फिर भी आएगी, हम स्प्रे कर ले फिर भी मौत आएगी। इसलिए कि खुदा ने ये ठहरा दिया है, ये दुनिया के लिए एक चांस है, मौका है बचने का, तौबा करने का। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। अब हम आते हैं इलाज की तरफ। आप जल्दी से, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि ज्यादा बात की जाए। मकाशफा 12 बाब में आज उसकी 11वीं आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स नंबर 11, बड़ी जबरदस्त खूबसूरत वर्स है। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्हें अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक मौत भी गवारा की। और अब वो जो है उस मुसीबत पर, अबलीस ये तो अबलीस की भेजी हुई वबाएं हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जो कि अबलीस खुद इन वबाओं को भेज रहा है, खुदावंद यीशु मसीह उस पर गालिब कैसे आया? अपने खून के वसीला से, कलाम की गवाही के वसीला से। उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना रखा। तो ये खुद नकारी 3 पॉइंट इसमें जबरदस्त हैं। कभी मौका मिला तो ये इस मैसेज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये बचाव का एक तरीका है जो मैंने आपके साथ जो है शेयर किया है। फिर खरूज 12 बाब में हम आ जाते हैं। खरूज 12 बाब और उसकी 13वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स नंबर 13। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर उनको छोड़ता जाऊंगा। जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं है। आप इंग्लिश बाइबल में जो भी हवाला सैम डालेगा
इस वबा का तर्जमा आप पढ़ ले पेस्टिलेंस, हाँ प्लेग, तो ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, पेस्टिलेंस और प्लेग। जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। What I want to say, उस खून में ऐसी बात क्या थी? ये पुराना ऐदनामा नए ऐदनामे का अक्स है। पुराना ऐदनामा शैडो है, नया ऐदनामा असल है। वो फसा का बर्रा यस्सु है, और उस फसे के बर्रे के खून को खुदा ने कहा कि अपनी चौखटों पर दरवाजों पर लगा देना, और ये मेरी शर्त है, अगर जिस घर में खून नहीं होगा भले वो इसराइली क्यों ना हो, वो भी मारा जाएगा। हालांकि खुदा को पता है कि ये घर इसराइलियों का है, लेकिन खुदा अपने कलाम को अव्वल दर्जा देता है। उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत का हवाला मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो उसने अपने कलाम को, जिन्हें खुदा का कलाम ये था कि फसा का बर्रा यकसाला नारो बेऐब हो और उसका खून अपनी चौखटों पर लगाना, तो तुम बचे रहोगे उस वबा से। लेकिन तुम तो बचे रहोगे, लेकिन तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर से वबा गुजर जाएगी, और जो मिस्री हैं उन पर वबा आएगी। तो मेरे तमाम लोग जो सुन रहे हैं, अगर गैर कौम लोग भी सुन रहे हैं, तो आप भी तौबा करें और खुदा यीशु मसीह के खून को मांगे। इसके बारे में ये लिखा है सूरा अल इमरान वर्स नंबर 45, वजीहुल दुनिया और वजीहुल फिल आखिरत, यानी वो दुनिया और आखिरत में बड़े करने वाले नबी होंगे, वो दुनिया में भी और आखिरत में भी। उसी का खून हमें आज इस वबा से बचा सकता है। उसका लहू हकीकत में वो वैक्सीन है जो कोई भी उसको लगाएगा। इट इज रिटन गॉस्पेल ऑफ चैप्टर 6 वर्स नंबर 37, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 37, whoever will come to me I will not rebuke him, whoever यानी हर आदमी गुनाह आलमगीर है और कफारा आलमगीर है। इस प्लेनेट पर ये वबा जो आई है, जो यीशु का खून अपने ऊपर लगाएंगे वो बच जाएंगे। जिन मिस्रियों ने इस बात को सुना कि इनका खुदा करने वाला खुदा है और इनका खुदा खुद जंग करता है, तो जिन मिस्रियों ने खून लगाया वो भी बच गए। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएं। और अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो लिखे आमीन और अपनी फीडबैक दें। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो, जिन घरों में फसा के बर्रे का खून था वो बच गए। आज जब हम यीशु का खून गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 29 और यूहन्ना इस्तबागी कहते, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, यानी उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर आप पढ़कर देखें पहला यूहन्ना और उसका जो है पहला ही बाप आप निकाल कर देखें। अभी हम खून की बात कर रहे हैं। पहला यूहन्ना फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 7, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। हालेलुया, उसके बेटे यीशु का खून, हालेलुया, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, हर किस्म के कोरोना से बचाता है, हर किस्म के वायरस से बचाता है। यीशु का खून वो वैक्सीन है जिसके सामने दुनिया की कोई बीमारी
ठहर नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये हवाला मैंने बताया फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 7। तो अभी हम जो है वैक्सीन की तरफ और ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसके बाद जो है इस हवाले को आप पढ़ लें, यशुआ पहला बाब और उसकी नामी आयत है। यहाँ यशुआ वो खुदा कहता, मूसा कहता मजबूत हो जा, हौसला रख, नंबर 2। नंबर 3, खौफ ना खा। हम कोरोना वायरस से खौफ ना खाएं, डट कर उसके सामने खड़े हो जाएं। हम कोरोना वायरस से पैनिक ना हों, और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा फरमाता है कि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। जिसके साथ यीशु है, क्या कोरोना वायरस उस पर अटैक कर सकता है? आई नीड योर फीडबैक। क्या कहा मैंने कि अगर यीशु मसीह आपके साथ है, आपने अपने माथे पर, अपने घरों पर यीशु का खून ईमान के साथ लगाया है, यकीन जाने आसपास लोग गिर जाएंगे। ये वाला भी मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन वबा आगे पीछे सबको मारेगी, लेकिन आपके घर में वो आने की भी नहीं है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। अब हम खास हवाला जो मैं अभी चाह रहा हूं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए, कि खुदा का कलाम जो है साम 91 तीसरी आयत, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे और मोलक वबा से छड़ाएगा। साम 91 वर्स नंबर 5 to 7, 91 ज़बूर 5 से 7। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। हालेलुया, दिस इज द वर्थ ऑफ क्रिश्चियंस। इफ यू आर बॉर्न अगेन, अगर आपको नई पैदाइश का तजर्बा है, तो ये वबा आपका कुछ नहीं बगाड़ सकती। हमने मुख्तलिफ हवाला जात से सीखा, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो वबा हमारा कुछ नहीं बगाड़ सकती। कोरोना वायरस हमें हार्म नहीं कर सकता। अगर हम ईमान के साथ बर्रे का खून, यीशु मसीह का खून जो हकीकी बर्रा है, सुबह उठने से पहले, जॉब पर जाने से पहले, अपने घरों पर यीशु के खून का इतलाक करते हैं, यकीन जाने कोई वबा, कोई मरी, कोई प्लेग आपके घर पर अटैक नहीं करेगा। This is my word. Hallelujah. Praise God. जाहो बरेगी। इसके साथ साम 91 वर्स नंबर 10, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक नहीं पहुंचेगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेगी। तो लिहाजा कलाम साहब बताता है कि कोई आफत तेरे नजदीक नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक नहीं पहुंचेगी। ये यहूदियों के नजदीक ये ज़बूर बहुत अहम था। वैसे हालात में इस ज़बूर की तलावत करते थे, अपने घरों पे लगाते थे। और मैं चाहता हूं कि ईमान के साथ एक विजिबल साइन है और एक अनविजिबल साइन है।
अनविजिबल साइन नजर नहीं आता, वो ईमान के साथ यीशु के खून को अपने माथे पर और अपने घरों पर लगाएं। और अगर आप अपने ऑयल को ब्लेस कर लें, तेल आप रखें, आप खुद भी ब्लेस कर सकते हैं, मैं आखिर में ब्लेस करूंगा। आप अपने घरों पर, चौखटों पर, दरवाजों पर ब्लेस किया हुआ ऑयल लगाएं और ऑयल लगाएं, ताकि खुदा जो है कोई वबा आपके करीब नहीं आएगी। और उसके बाद हम ये देखते हैं, एक और कलाम में से हवाला आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं इसलिए उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद खुदा जो है हमारे साथ है, वो हमें संभालता है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ जल्दी से ये शेयर की हैं। तो मेरा ख्याल है कि दूसरा पॉइंट जो है, हम आज मंडे है, बुध को दूसरा सवाल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसी जगह पर मैं इस कलाम को जो है वाइंड अप करता हूं। आज मैंने कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों से कलाम शेयर किया है। हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ईमान से भर जाएं और खुदावंद के कदमों में गिरें और तौबा करें और मसीह यीशु का खून का तलाक करें और ज़बूर 92 को लिखकर बाहर दरवाजों पर लगा दें। कोई वबा आपके घर में नहीं आएगी। आए हम दुआ करें। और दूसरा सवाल हमारा जो डाला था वो रह गया है, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि हम उसकी तरफ जाएं। फिर हम बुध को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग जरूर, मैं तो आप लोगों के साथ कलाम सीखने के लिए, सिखाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप लोग भी मेरा साथ दें और लोगों को आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपने तेल रख लिया है तो मैं आप लोगों को ब्लेस करूंगा और दुआ करूंगा। आए खुदामंद खुदा रुए पाक, आज के कलाम के वसीला से जिन लोगों ने ईमान से सुना है, उन सब को तेरी पसली की गार में छुपाता हूँ, उन सब पर तेरे खून का इत्तला करता हूँ। और जितनों ने तेल रखा है, मैं उस तेल को ब्लेस करता हूँ। बाप बेटा पाक उस तेल को ब्लेस करता हूँ। बाप बेटा पाक उस तेल को ब्लेस करता हूँ। वो तेल तेरे खून में बदल जाए। जब तेरे बेटे बेटियां आए खुदामंद अपने घर की चौखटों पर और दोनों दरवाजों की बार पर लगाते हैं, तो आए खुदामंद खुदा कोई वबा आए खुदामंद हमारे घर में घुसने नहीं पाएगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाहो बरेकी। आए खुदामंद तुम्हारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। और जितने बहन भाइयों ने इस कलाम को सुना है, तो उन सबको इस कलाम के वसीला से ढेरों बरकत अता कर। ये सब कुछ हम, अगर कोई बीमार हैं तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, तो उनको भी शिफा दे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जितने टाइम निकाल कर आए, आप सबको वेलकम करता हूं और ब्लेस करता हूं। और इसके साथ बुध को हम दूसरा मैसेज का पार्ट 2 जो है वो सीखेंगे। ये याद रहे और याद रखें। और हमारे YouTube चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, DICPF TV, इसको आपने सब्सक्राइब करना है। और फेसबुक पे भी डाला हुआ है, आप उसको लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को वक्त पर मिले, जो कि बहुत ही आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी वो मुस्तकबिल के बारे में होंगी, ताकि जो कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, आमीन।
आए खुदावंद बहन विवियन के लिए, उसके भाई के लिए दुआ करते, भाई मुश्ताक के लिए, तो उसको शफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसकी शुगर यीशु नाम से नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर यीशु नाम से नॉर्मल हो जाए, आमीन आमीन। और जितनी इसके अलावा और मजीद रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। तुम्हारी दुआ को सुन, और तमाम बीमारों को जब उन्होंने ईमान के साथ दरख्वास्त भेजी है तो हम भी ईमान के साथ दुआ करते हैं, क्योंकि ये बीमारियां तेरे खादमों का हुक्म मानती हैं। और ऐ खुदामंद खुदा तमाम बीमार यीशु नाम से शिफा पाएं, और उस मुस्लिम बेटी के लिए तबस्सुम के लिए जिसने शिफा पाई, बदरू गिरफ्तार थी, उसको शिफा में कायम रख, आमीन।